Okay, we can start our meeting, okay? Our class. In last class, we are studying synchronous motor. Same circuit diagram, which is already there. In the last class, we are studying the synchronous motor, right? Synchronous motor. In synchronous motor, what we have discussed? We have discussed about working principle of synchronous, right? Synchronous motor, the construction is not specific. Construction is exactly same as synchronous generator. We are not studying about synchronous motor construction is different or synchronous generator is different. Both are construction wise, both are exactly same. Only difference is if you give mechanical power input, it works as a synchronous generator. If you give electrical power input, it works as a synchronous motor. In this synchronous motor, we are giving a three-phase electrical power input. Three-phase electrical power input, and it will give, machine will give a mechanical power, right? We have discussed the synchronous motor works on the principle of magnetic locking between stator magnetic field and rotor magnetic field. This everybody should remember that synchronous motor works on the principle of magnetic locking between stator magnetic field and rotor magnetic. You getting this point? Stator magnetic field and rotor magnetic field के बीच में अगर magnetic, if there is a magnetic locking between stator magnetic field and rotor magnetic field, then this machine will continuously run at exactly at synchronous speed for infinite. Because this is locked and this will continuously rotate. This is because of magnet. Next. In last class, we also discussed that synchronous motor is not self-starting. Why it is not self-starting? Because the torque acting on rotor is pulsating in nature. You can say for 10 millisecond torque is positive, and for another 10 millisecond torque is negative. Because the position of stator magnetic field is changed exactly in 10 millisecond, which is very small as compared to time constant of the machine, mechanical time constant. Therefore, for magnetic locking, you have to run this machine by some other means, say prime mover, DC motor or induction motor or any machine. You can rotate this at synchronous speed. When this machine, when this rotor achieved a synchronous speed, at that moment you can apply the excitation or excite the rotor, and it will get locked with stator. And a rotor magnetic field is magnetically locked with rotor magnetic field. After locking of stator magnetic field and rotor magnetic field, you can disconnect or you can remove the prime mover. Prime mover is only used for starting the motor. After, once the motor is started, prime mover is. This is one method. But another method is also there, which is frequently or practically it is commercially is used. That is the second method is damper winding method. That method is called as damper winding method, or we call it as a damper winding starter. Okay, damper winding starter ये एक मेथड होता है. इसमें ना, in this method one winding is on stator. I told you three phase winding is on stator, star connected or delta connected, displaced in space by 120 degree. One winding is on stator, that is three phase winding. Single phase winding is on rotor. Rotor में एक winding है, single phase winding, which produces the magnetic field. And now I am talking about third winding, which is called as damper winding or damper bars. Damper winding या damper bars बोलते हैं उसको. I can show you in the screen sharing.
मैं आपको दिखाता हूं कि डैम्पर वाइंडिंग कैसे होता है, राइट। दिस इज समहाउ हाउ डैम्पर वाइंडिंग्स आर देयर। ये देखो, ये फिगर में आपको दिख रहा है कि जो रोटर, इन रोटर बार्स, जो रोटर्स के प्रोजेक्टेड सेलिएंट पोल्स है, पोल्स में देखो स्मॉल स्मॉल होल्स है, सर्कल टाइप है, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज डैम्पर वाइंडिंग, बार्स ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये जो सर्कल है ना, ये जो छोटे छोटे सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज डैम्पर बार्स। अगर बोर्ड में देख रहे हो तो मैं अगर बना रहा हूं तो ये देखो, ये बोर्ड में देख रहे हो तो ये दीज आर डैम्पर बार्स। ये क्या होते हैं कि बार्स होते हैं, देयर आर डैम्पर बार्स, ठीक है। तो रोटर में डैम्पर बार्स होते हैं और वो प्रैक्टिकली शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। सपोज ये 4-5 बार्स है रोटर में, तो पांचों बार नीचे से और ऊपर से ऐसे लंबे लंबे बार्स होते हैं, दे आर शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। तो गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ डैम्पर वाइंडिंग और डैम्पर बार कंस्ट्रक्शन, मैंने जब सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ाया था तो मैंने डैम्पर वाइंडिंग का डिस्कशन कभी नहीं किया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डिस्कसिंग अबाउट डैम्पर वाइंडिंग। व्हाट इज देयर? डैम्पर वाइंडिंग इज ए स्पेशल rod inserted on the poles of rotor के poles में inserted होते हैं और वो आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, ठीक है। ये एक थर्ड वाइंडिंग है which is called as damper winding, which is used for starting a 3-phase synchronous motor। वो synchronous motor स्टार्ट करने के काम में आता है, 3-phase synchronous motor स्टार्ट करने के काम में आता है। That is called as damper। दिस इज डैम्पर वाइंडिंग है, ये पोल्स में होते हैं, ठीक। ये सिर्फ स्टार्टिंग के काम में आता है, रनिंग कंडीशन में इसका कोई काम नहीं रहता। ये आपस में अंदर से वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड। हाउ दिस डैम्पर वाइंडिंग कम इन पिक्चर? और बिना प्राइम मूवर के लास्ट क्लास में व्हाट आई एम टोल्ड यू, सिंक्रोनस मोटर इज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज टॉर्क जो एक्ट कर रहा था आपके पास, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड में जो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आ रहा था, वो 10 मिलीसेकंड में चेंज हो रहा, क्योंकि 10 मिलीसेकंड में साउथ पोल यहां चला गया, नॉर्थ पोल यहां चला गया। तो एक बार अट्रैक्शन और एक बार रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन, तो पल्सेटिंग टॉर्क की वजह से ये ऑन नहीं होता। इसको, दिस मशीन विल रिक्वायर अ पॉजिटिव टॉर्क, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव टॉर्क आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आप देखो डैम्पर वाइंडिंग पिक्चर में, इनिशियली हम क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे नहीं, इनिशियली हम डीसी सप्लाई देंगे नहीं, ठीक है। स्टेटर को मैं 3-फेज सप्लाई देंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इनिशियली हम इसको डीसी सप्लाई को ओपन सर्किटेड, शॉर्ट भी नहीं करेंगे, हम ओपन सर्किटेड रख देंगे, इसको डीसी सप्लाई देंगे नहीं, ओपन सर्किट रख देंगे। 3-फेज सप्लाई हम स्टेटर में देंगे। 3-phase supply, when you give a 3-phase supply to 3-phase winding in 3-phase stator winding displaced in time space by 120 degree, a rotating magnetic field is produced which rotates at synchronous speed. हमारे पास only one magnetic field is there, that is stator magnetic field, which is running at synchronous speed से 120 f/p, 50 हर्ट्ज की सप्लाई तो 3000 rpm में आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर एप्लीकेशन। मोटर एप्लीकेशन का वर्किंग प्रिंसिपल आप समझने की कोशिश करो। ट्राई टू रिमेंबर आवर मशीन क्लास की व्हाट इज मोटर प्रिंसिपल। मोटर प्रिंसिपल अगर हमने मशीन क्लास में पढ़ा था तो बी केयरफुल, आप उसको कॉल बैक करो। करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेटर, पहला क्या है, जनरेटर प्रिंसिपल पे जा रहा हूं। करंट कैरिंग कंडक्टर produces magnetic field all around the length of, करंट दिए तो मैग्नेटिक फील्ड आया। फिर हमने जनरेटर प्रिंसिपल क्या किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स gives you induced EMF Faraday's law, rate of change of flux gives you induced EMF generator principle,
एंड व्हाट इज मोटर प्रिंसिपल? करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। करंट है आपके पास और मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। करंट है आपके पास और मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि हमारे पास फोर्स आ जाएगा, और फोर्स आ जाएगा तो टॉर्क आ जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास? वी हैव थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई गिव्स राइज टू मैग्नेटिक। नॉर्थ पोल साउथ पोल स्टेटर का आ गया, रोटर का नहीं है, थोड़ा सा केयरफुली समझो। वी हैव स्टेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नो सप्लाई टू रोटर। रोटर में सिर्फ डैम्पर वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग भी ओपन है। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कंटिन्यूअसली कटिंग द डैम्पर कंडक्टर। ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल सिंक्रोनस स्पीड में 3000 आरपीएम में घूम रहा था, when this north pole and south pole is rotating at 3000 rpm, it cuts the damper winding conductor। ये कंडक्टर को काटेगा, डैम्पर वाइंडिंग कंडक्टर को काटेगा तो फिर फेराडेस लॉ आ गया। EMF is induced in this damper winding। EMF is induced in this damper winding। Are you getting my point? फर्स्ट केस थ्री फेज सप्लाई दिए, थ्री फेज सप्लाई गिव्स राइज टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट्स द डैम्पर कंडक्टर, डैम्पर कंडक्टर को कट करेगा, देन EMF is induced in this damper conductor। EMF is induced in this damper। Now we apply a motor principle। Current carrying this damper conductors, current carrying this damper conductors placed in a magnetic field, south pole north pole magnetic field में place हो गया, will experience a force। Current carrying conductor placed in a magnetic field will experience a force। Therefore damper conductor में force आ जाएगा। तो ये देखो फ्लेमिंग्स अगर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर रहे थे, एक जगह डैम्पर कंडक्टर में इधर फोर्स आएगा और इधर एक जगह ऐसा फोर्स, तो इसमें टॉर्क आ जाएगा ओवरऑल रोटर में, और रोटर घूमने लग जाएगा ऑटोमेटिक। एंड मींस कि इन दिस प्रिंसिपल, ये अगर आप मशीन को देखोगे सिंक्रोनस मोटर को, डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग, व्हाट वी आर स्टडीइंग, वी आर स्टडीइंग डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टर और डैम्पर वाइंडिंग मेथड ऑफ स्टार्टिंग। इसमें क्या कर रहे हैं हम? सिंक्रोनस मोटर की मेथड से रन नहीं कर रहे। सिंक्रोनस मोटर मैग्नेटिक लॉकिंग अभी कुछ नहीं हुआ, हमने मैग्नेटिक हटा दिए नॉर्थ पोल साउथ पोल रोटर से। हमने क्या किया है? वी हैव अप्लाइड ओनली, वी हैव क्रिएटेड अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर। स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट्स द डैम्पर कंडक्टर, एंड डैम्पर कंडक्टर में EMF इंड्यूस हुआ, डैम्पर कंडक्टर में EMF इंड्यूस हुआ तो डैम्पर कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। ये डैम्पर कंडक्टर है, सपोज बार है, इसमें करंट फ्लो होगा, तो डैम्पर कंडक्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स, एंड डैम्पर वाइंडिंग जो बार से बार में फोर्स आएगा तो ये रोटर ये घूमने लगेगा और एक स्पीड आपकी आ जाएगी। But this will not catch synchronous speed। This will not catch synchronous speed, नहीं आएगी। सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुंच जाएगा, बट एग्जैक्टली सिंक्रोनस स्पीड नहीं आएगी, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी तो फिर वाइंडिंग नहीं काट पाए। If this rotor reach the synchronous speed, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा, EMF इंड्यूस नहीं होगा, EMF इंड्यूस नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो सिंक्रोनस स्पीड कम होगी। ठीक है, ये वर्किंग प्रिंसिपल एक्चुअली इंडक्शन मोटर का है, तो व्हेन आई टीच यू इंडक्शन मोटर उसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो समझ लो कि ये डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग मींस दिस सिंक्रोनस मोटर इज स्टार्टेड एज अ इंडक्शन मोटर, और फिर जैसे ये क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड पहुंच गया तो फिर हम ये डीसी सप्लाई एक्साइट करें।
यानी बिना रोटर को सप्लाई दिए, बिना रोटर के नॉर्थ पोल साउथ पोल के, हमने डैम्पर वाइंडिंग जो कनेक्टेड था, डैम्पर वाइंडिंग की वजह से फोर्स आया और घूमने लगे। जब वो सिंक्रोनस स्पीड के पास चला जाएगा तब हम क्या करेंगे, हम डीसी सप्लाई देंगे और ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। थोड़ा सा डिफरेंस है स्पीड में, लेकिन अब क्या है कि 10 मिलीसेकंड का टाइम नहीं लगेगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। पॉजिटिव टॉर्क के पास चला जाएगा, नेगेटिव के पास चला जाएगा और मैग्नेटिक लॉकिंग होगी ये घूमने में। क्योंकि हमारा जो डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग के वजह से दिस रोटर इज ऑलरेडी और रीच द स्पीड क्लोज टू सिंक्रोनस, स्पीड पहुंच चुका है। तो फिर हम नॉर्थ पोल साउथ पोल लगाएंगे, तो जैसे ही नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा, रोटर का डीसी सप्लाई देंगे, तो जैसे डीसी सप्लाई देंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा और वो स्पीड पकड़ ले, एंड मशीन विल रन एज अ सिंक्रोनस मोटर। फिर वो सिंक्रोनस मोटर के जैसे रन करेगा। तो एक मेथड है आपका प्राइम मूवर स्टार्टर, फर्स्ट मेथड इज प्राइम मूवर स्टार्टर एंड सेकेंड मेथड इज डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टर। Anybody having any doubt, queries, they can ask the question. Always welcome. Because what you are doing in home and what you are doing in your end, I am not understanding. आप वीडियोस देखो, वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, केयरफुली बुक से पढ़ो। कमिंग वीक में हम लोग एक टेस्ट लेंगे, मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई विल टेक टेस्ट ऑन क्विज जो सिलेबस हुआ है, बट मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज देयर आर लाइन से फेस्टिवल्स आ रहे हैं और यू वुड बी बिजी इन फेस्टिवल वर्क दिस वर्क। तो आप टेस्ट की तैयारी करते रहो, मे बी इस वीक में मैं ले सकता हूँ टेस्ट बाय सैटरडे या मंडे, ठीक है, नॉट टुडे, कमिंग सैटरडे और मंडे में एक टेस्ट लूंगा। तो टेस्ट की प्रिपरेशन आप करो, क्योंकि आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है, योर फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, वॉट एवर क्वेश्चंस क्यूरीज यू हैव, ओवरऑल यू हैव टू स्टडी, ठीक है। आई एम टीचिंग यू अगेन एंड अगेन, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई विल शो यू सिंक्रोनस मशीन आल्सो इन नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो मैं आपको, अभी तो मैं लैपटॉप में ले रहा हूँ, तो मैं मोबाइल में जूम मीटिंग करूंगा, तो आई विल शो यू सिंक्रोनस मशीन इन मशीन लैब में, आपको दिखाऊंगा सिंक्रोनस मशीन कैसा होता है, ठीक है। तो एक पार्ट आपका क्लियर हो गया कि सिंक्रोनस मशीन में डीसी सप्लाई भी लगता है और एसी सप्लाई भी लगता है। ये आपका 3 फेज एसी सप्लाई है, सेंटर में डीसी सप्लाई है। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड द डैम्पर वाइंडिंग, और डैम्पर वाइंडिंग पिक्चर में होता ही नहीं है जब मशीन सिंक्रोनस स्पीड में घूमने लगे। नहीं समझा? डैम्पर वाइंडिंग function is, damper winding is nowhere significant when machine is running on synchronous speed। ये डैम्पर वाइंडिंग का कंसेप्ट को थोड़ा सा केयरफुली सुनो कि डैम्पर वाइंडिंग करता क्या है। डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस जनरेटर में भी होता है और सिंक्रोनस मोटर में भी होता है। तो व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन और व्हाई इट इज कॉल्ड एज डैम्पर वाइंडिंग? The question is why it is called as a damper winding, why the word damper is given. अगर आपको, if you see, go on research on English literature, what damper stands for. Damper means damp out. Damp means कोई अगर अस्थिरता है, कोई वाइब्रेशन है तो उसको रोकना, कोई हिल रहा डुल रहा है या कोई डिस्टर्ब है तो उनको रोकना। जैसे शॉक एब्जॉर्बर्स रहते हैं आपके बाइक में, आपके स्कूटी में, जो भी है व्हीकल्स वगैरह में, सडनली ब्रेक लगाते तो वो ब्रेक का जो इम्पैक्ट है, आपकी गाड़ी आगे टर्न ना हो, गिरे ना, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम शॉक एब्जॉर्बर्स लगाते हैं। उसको वो क्या करता है, डैम्पिंग करता है, डैम्प आउट द सडन इनर्जी। वैसे ही कोई डिस्टर्बेंस आता है मशीन में, if there is any disturbance in machine, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, इसको at that condition
the damper winding will come in picture, and it absorbs the disturbance in the machine, especially rotor. ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया है कि synchronous machine runs always at synchronous speed. Synchronous speed means 3000 RPM में रोटर. नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. you can check कि frequency is a component which is never changing, or change is very low 0.5%. बट वोल्टेज को आप देखोगे 5%, 10%, कभी 240, 250, 260 हो जाता है, कभी 200 हो जाता है. तो वोल्टेज चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती. इसलिए स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं. बट बाय चांस अगर स्पीड कम ज्यादा हो गई, देयर इज सडन चेंज इन स्पीड, तो ब्रेकआउट हो जाएगा ना. सिंक्रोनस मोटर में भी प्रॉब्लम है, सिंक्रोनस जनरेटर में भी प्रॉब्लम है. अगर whenever there is a change in speed, अगर स्पीड थोड़ा भी चेंज हुआ, स्पीड चेंज हुआ मींस क्या होगा, मैग्नेटिक लॉकिंग ब्रेक हो जाएगा. मैग्नेटिक लॉकिंग ब्रेक हो गया मींस सिंक्रोनस मोटर अनस्टेबल हो गया, इट विल लूज द सिंक्रोनिज्म, अनस्टेबल हो जाएगा, वो रुक जाएगा सिंक्रोनस मोटर. तो वो स्पीड कभी चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, उसको पकड़ के इंटैक्ट करके रखे. तो उसमें भी एक काम पर्पस आता है डैम्पर. अब वो कैसे आता है, वो कॉन्सेप्ट को आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सपोज इट इज अ सिंक्रोनस मोटर एंड रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड. आइडियली वो सिंक्रोनस स्पीड में चल रहा है. सिंक्रोनस स्पीड में आइडियली चल रहा है मींस डैम्पर वाइंडिंग भी सिंक्रोनस स्पीड में चल रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज डैम्पर वाइंडिंग इज इन रोटर, damper winding is moving at synchronous speed. 3000 RPM means damper winding speed is 3000 RPM. If the synchronous motor is running at synchronous speed, damper winding speed is 3000 RPM. Since the damper winding speed is 3000 RPM and magnetic field speed is 3000 RPM, there is no flux linkages. Flux कुछ काट नहीं पा रहा है. वो डैम्पर भी सिंक्रोनस स्पीड में चल रहा है, फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड में चल रहा है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो ही नहीं पा रहा है. फैराडेज लॉ नहीं आता. फैराडेज लॉ विल नॉट वर्क ऑन एट सिंक्रोनस स्पीड व्हेन द रोटर इंडक्ट सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट सिंक्रोनस. बट व्हेनेवर देयर इज अ डिस्टर्बेंस, whenever there is a disturbance, speed becomes greater than or less than synchronous speed, say 5 RPM, 10 RPM. If the speed becomes greater than or less than synchronous speed, damper winding will come on picture. Damper winding will come on picture because there is a flux linkage between stator magnetic field and damper winding. Since देखो चेक केयरफुली कि स्पीड अगर कम या ज्यादा होती है तो फ्लक्स लिंकेजेस होगा, फ्लक्स डैम्पर वाइंडिंग को काटेगा. अगर सिंक्रोनस स्पीड में, इफ द मशीन इज रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, देयर इज नो फ्लक्स लिंकेज. व्हेनेवर देयर इज अ सडन चेंज इन स्पीड, देयर इज स्लाइट चेंज इन स्पीड, फ्लक्स लिंकेजेस होगा, फ्लक्स इसको काटेगा डैम्पर. जैसे फ्लक्स ने काटा तो वैसे क्या होगा, whenever there is a flux linkages, EMF is induced. EMF is induced means करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा तो फोर्स. तो डैम्पर वाइंडिंग में एट एनी अदर स्पीड में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, एंड बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स EMF is induced. EMF is induced means because of Faraday's law. EMF is induced means current. Current means current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force. और वहां पे लेंस लॉ भी लगेगा. लेंस लॉ EMF इंड्यूस का डायरेक्शन ऐसा होगा which opposes the cause producing it. तो वो सिंक्रोनस स्पीड से जैसे डिस्टर्ब होगा तो उसको सिंक्रोनस स्पीड में ला देगा. डैम्पर वाइंडिंग में जो फोर्स लगेगा, इसमें
जनरेटर प्रिंसिपल भी लग रहा है, मोटर प्रिंसिपल भी लग रहा है. दैट इज व्हाई it is very difficult to understand the principle of operation of synchronous motor. Initially, whenever there is a disturbance, EMF is induced in damper winding. Since EMF is induced in damper winding, current will flow on damper winding. Now we have motor principle. Current carrying conductor, damper winding conductor, placed in a stator magnetic field, experience a force. And force उसी डायरेक्शन में आएगा as per Lenz's law. और लेंस लॉ की वजह से वो अपोज करेगा. अपोज किसको करेगा? अगर स्पीड बढ़ गई है तो उसको कम करेगा, स्पीड कम हो गई तो स्पीड को कम है तो स्पीड को बढ़ाएगा और क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड लेगा. तो इन केस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इट विल टेक द स्पीड क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड. और जैसे आप इसको हाईलाइट करेंगे तो मैग्नेटिक लॉकिंग को मेंटेन करेगा. तो डैम्पर वाइंडिंग के दो फंक्शन हो गए. फर्स्ट फंक्शन इज इट इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग अ 3-phase सिंक्रोनस मोटर. एंड सेकंड फंक्शन व्हेनेवर देयर इज ए डिस्टर्बेंस, तो डिस्टर्बेंस जैसा होगा तो रोटर में एक वाइब्रेशन आती है. व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन स्पीड चेंज होगी तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग टूटने की कोशिश होगा तो रोटर थोड़ा सा ऑसिलेट होता है. लेकिन जैसे ही स्पीड चेंज होगी तो डैम्पर वाइंडिंग क्या हो जाएगा? रोटर को स्टेबलाइज करेगा. उसकी स्पीड कम हो गई तो बढ़ा देगा, अगर बढ़ गई तो कम करके डैम्पर वाइंडिंग को, ये मैग्नेटिक लॉकिंग को ब्रेक होने नहीं देगा. दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन एज डैम्पर. डैम्पर मींस इट डैम्प्स आउट द ऑसिलेशन, इट डैम्प्स आउट द ऑसिलेशन ऑफ रोटर. उसको हम हंटिंग भी बोलते हैं. सडन चेंज इन, अगर आपने लोड, अगर सिंक्रोनस जनरेटर है तो आपने सडनली लोड बढ़ा दिया. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लोड बढ़ाना मींस क्या? इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई एम सेइंग कि देयर इज सडन इंक्रीज इन लोड. यानी कि आपका सपोज 230 किलोवाट का जनरेटर है, 230 kVA और 500 kVA का जनरेटर. इनिशियली लोड इज 0 या इनिशियली लोड इज 100 kVA. सडनली आपने 5 AC स्टार्ट कर दिए, 10 AC स्टार्ट कर दिए, फैन चालू कर दिए, मोटर चालू कर दी, तो लोड बढ़ गया. सडनली इनिशियली इंक्रीज इन लोड होगा तो जनरेटर को अपना जनरेटर बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है ना? जनरेटर को अपना जनरेशन बढ़ाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो उसके वजह से ही इसमें डिस्टर्बेंस आता है. व्हेनेवर देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन सिंक्रोनस जनरेटर, सडन चेंज इन लोड, और इन सिंक्रोनस मोटर सडन चेंज इन मैकेनिकल लोड, लोड चेंज करते हैं तो उसमें लोड आता है. तो डिस्टर्बेंस को डैम्प आउट करने के लिए वी यूज द मेन फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इज डैम्प आउट द ऑसिलेशंस. ठीक है? एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस, क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग. ठीक है? तो एक फंक्शन तो यह है कि it is used for starting a synchronous motor. Second function, during running condition, if there is any disturbance, sudden change in mechanical load or electrical load, it sustains or it damps out the oscillation. Oscillations को damp out करता है. That is why the name is given as damper. Anybody having any doubt, questions? तो पूछ सकते हो. राइट? ठीक है, वो क्लियर है. अगर वो वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है जो ऑसिलेटर हिलता है, देखो मैग्नेटिक लॉकिंग ब्रेक होगा तो इसमें थोड़ा सा ऑसिलेशन आएंगे. उसको ऑसिलेशंस को रोकना इज नथिंग बट हंटिंग को प्रिवेंट करना. हंटिंग होना, हंटिंग फेनोमेना बोलते हैं. जब भी सडनली लोड चेंज होता है तो ये थोड़ा ऑसिलेट होता है. अब किसी को एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस तो पूछ सकते हैं. तो ट्राई टू स्टडी दिस. ठीक है? एंड थॉरोली आप क्विज का प्रिपरेशन करो. ऑल टॉपिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन. वी आर स्टडिंग ऑल 3 यूनिट्स इन कंटिन्यूअस. ठीक है? मैं फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहा हूँ या सेकेंड यूनिट पढ़ा रहा हूँ और थर्ड यूनिट पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. हम तीनों यूनिट एक साथ ही पढ़ रहे हैं. थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है. तो यू जस्ट चेक द सिलेबस
ऑल 3 यूनिट्स हमें पहले सिंक्रोनस मशीन पूरा अच्छी तरीके से करना है, देन वी विल स्टडी इंडक्शन मोटर। तो ऑल मशीन्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लिंकिंग होती है कि आपको अगर फैराडेस लॉ पता नहीं है तो हम सिंक्रोनस मोटर का एप्लीकेशन, यहाँ पे हमने फैराडेस लॉ भी यूज किया, मोटर प्रिंसिपल भी लग रहा है, फैराडेस लॉ भी लग रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field experience of force is motor principle, and rate of change of flux EMF is induced is Faraday's law। इसमें Faraday's law भी लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट क्यूरीज तो पूछ सकते हैं। इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट अगर सिंक्रोनस मोटर का बनाएंगे तो सिंक्रोनस मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट अभी ऐसा उल्टा बनेगा। सिंक्रोनस मोटर में हम V अप्लाई करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर में E इंड्यूस होता था एंड RA एंड एक्सेस में ड्रॉप होके हमें V मिलता था। बट अगर आप सिंक्रोनस जनरेटर मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो वो ऐसा, हम V अप्लाई करेंगे, RA एक्सेस ड्रॉप हो जाएगा और EB मैंने डिस्कस नहीं किया। EB इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। EB इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। ये मैंने अभी तक के डिस्कस नहीं किया, तो वो EB क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। EB इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। जैसे सिंक्रोन ट्रांसफार्मर को आप यू कैन रिमेंबर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में आप वोल्टेज V अप्लाई करते हो प्राइमरी वाइंडिंग में, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग में एक EMF इंड्यूस होता है E1, आपको याद होगा। V अप्लाई करते हैं और EMF इंड्यूस होता है E1, यहां ड्रॉप होता है। E1 इज इंड्यूस्ड EMF इन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड V1 इज अप्लाइड वोल्टेज। तो उसी को कोरिलेट करो कि हमने V अप्लाई किया इधर पे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, स्टेटर की भी है और रोटर की भी मैग्नेटिक फील्ड है। जो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रोटर का है, दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल कट द वाइंडिंग्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। जो वाइंडिंग्स है उसमें सिंक्रोनस जनरेटर को उसको काटेगा, देयरफॉर EMF भी इंड्यूस होगा। यानी जनरेटर प्रिंसिपल भी बाय डिफॉल्ट लगता है। अगर आपने डीसी मोटर पढ़ा होगा केयरफुली, अगर आप डीसी मोटर में देखोगे तो डीसी जनरेटर में जैसे EG इंड्यूस होता है, डीसी जनरेटर में EG इंड्यूस होता है, वैसे ही डीसी मोटर में EB इंड्यूस होता है। डीसी जनरेटर में क्या होता है कि आपने टरबाइन को प्राइम मूवर से घुमाया तो EG इंड्यूस होता है, लेकिन अगर मोटर को आपने ऑन किया, मोटर जब घूम रहा है, जब मोटर मैग्नेटिक फील्ड को काट रहा है, तो फैराडेस लॉ मोटर में भी लगता है और मोटर में भी इंड्यूस होता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर कंडक्टर को काटेगी तो स्टेटर कंडक्टर में भी EMF इंड्यूस होगा। दैट EMF इज EB। दैट EMF इज कॉल्ड एज बैक EMF। ठीक है, दैट EMF इज कॉल्ड एज बैक EMF। इसको केयरफुली याद रखें। तो इसीलिए मैंने जो वो सिंक्रोनस मोटर का मॉडल बनाया है, मैंने सप्लाई V ऑन दिया, RA एक्सेस ड्रॉप हुआ, रिटर्न क्या मिला मुझे EB। तो ये इलेक्ट्रिकल मॉडल है। अगर मैं इसका मैकेनिकली कन्वर्शन देखूंगा तो EB एंड IB जो पावर है इसमें, दैट पावर इज कन्वर्टेड, इलेक्ट्रिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल। इस पे भी हमें फेजर डायग्राम वगैरह बनाने हैं, उसको हम देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर को हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंक्रोनस जनरेटर के हमने फेजर डायग्राम बनाया, सिंक्रोनस मोटर के थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, वो भी बनाना है। एक चीज क्लियर है कि सिंक्रोनस मोटर में भी बैक EMF इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होता है, दैट इज EMF इज कॉल्ड एज बैक EMF। व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैक EMF? इट इज अपोजिंग द V। ये V के अपोजिट डायरेक्शन। V अगर ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, अपोजिट डायरेक्शन। In the next class we will discuss other things.
हम आगे और सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर पार्ट भी कंप्लीट हुआ नहीं है. सम पावर इक्वेशंस, सिंक्रोनाइजेशन, पैरेलल ऑपरेशन बचा है. मैंने बीच में थोड़ा सा मोटर का आपको आइडिया दे दिया है, मोटर कैसे होता है, जनरेटर कैसे होता है, जस्ट फॉर योर कंपेरिजन हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क्स, हाउ सिंक्रोनस जनरेटर वर्क्स. आपके यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, वीएल थेरेजा की बुक को आप सिंक्रोनस मोटर को पूरा पढ़ो अच्छे से. कोई डाउट होता है तो वी कैन डिस्कस, राइट. यू हैव एम्पल टाइम, बट हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो आप सिंक्रोनस मोटर को थोड़ा सा रिवाइज करो, ठीक है. कमिंग वीक और next week Monday I can take a test on this synchronous machine, both generator and motor, whatever is taught in class. Okay, thank you. Anybody having any doubt, they can ask. Shall I stop here? Okay then, huh? Recording I will upload in the YouTube. You can see the recording again and again if you have any doubt, queries.